Hello dear student, this is Mahendra Jakurwal and once again welcome to my YouTube channel. So dear students, in this video we are going to start the very important topic, that is laws of motion. As we know that either the body is in rest position or is in motion. बॉडी एक तो है वो मोशन में हो सकती है या फिर रेस्ट में हो सकता है. ओके, व्हेन बॉडी इज इन मोशन एट दैट टाइम it obeys certain laws of motion, and what is that law? That is we are going to study in this video. Okay, so let us start laws of motion. Actually dear friends, we know that there are three laws of motion given by Newton and hence known as Newton's laws of motion. Okay. So dear friends, before studying the first law of motion, we must know some basic concept about the force. As we know that force is nothing but the push or pull acting on an object. Okay, so force are of two types. The number one is called balanced force. And second one is unbalanced force. Okay, the second type of force is called as unbalanced force. Okay, so let us consider a simple example to understand these two concepts, that is balanced force, unbalanced force. Okay, let us consider the simple example. Suppose we have a table and an object is kept on the table. At that time what happened? There are two types of forces acting on this object or on this ball. The first force acting on this ball is its force or its weight in the downward direction. The first force which is acting on an object is what? Its weight in the downward direction. As we know that weight is nothing but the product of mass into acceleration due to gravity, that is W is equal to mg. This is the first force acting on this object, that is on this ball. At the same time, the one more force is acting on the object, that is called as normal force in the upward direction. This is the normal force. Okay, and these two forces are acting in opposite direction. Okay, one force is acting in upward direction and the another force is acting in the downward direction. But always remember one thing, these two forces having the same magnitude. इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे होता है? सेम होता है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ द नॉर्मल फोर्स इज ऑफ 5 न्यूटन, okay, then its applied force or you can say weight of the object is also 5 Newton. Both the forces having the same magnitude but opposite directions. The first force is acting in upward direction and the another force is acting in the downward direction but having the same magnitude. Now consider the such case in which two forces are acting on the same body but in the opposite direction having the same magnitude. Then what happened? Okay, let us consider the simple example. You know the tug of war, रस्सी खींच. इसमें क्या होता है कि एक रस्सी होती है, उसको दोनों तरफ से दो टीम्स उसको खींचते हैं. अगर मान लो कि उस बॉडी पे दोनों भी टीम ने अपोजिट साइड से जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स सेम है, सेम मैग्नीट्यूड का है. इन दैट केस व्हाट हैपन? द रोप और द थ्रेड विल नॉट मूव इन आइदर डायरेक्शंस. ओके, दोनों भी डायरेक्शन में रोप मूव नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा. इसका मतलब है व्हेन टू फोर्सेस हैविंग equal magnitude or same magnitude but different direction or opposite direction acting on the same object, then the net force acting on the object is 0. जो उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट होता है वो क्या होता है? 0. हियर वी कैन कंसिडर, यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है. तो ऊपर जो लग रहा है, चलो नीचे जो लग रहा है उसको हम प्लस ले लेते हैं, प्लस 5 न्यूटन फोर्स. अब दूसरा फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको हम लेते हैं -5 न्यूटन फोर्स. अब इन दोनों का हमने सम किया, +5 न्यूटन एंड -5 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट?
0 न्यूटन फोर्स मींस यहां पे बॉडी के ऊपर 2 फोर्स एक्ट होने के बावजूद भी उस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या है, 0 है. सच टाइप ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स. अंडरस्टैंड? अगर बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो ऐसे फोर्सेस को बोलेंगे हम बैलेंस्ड फोर्स. क्या बोलेंगे उसको हम? बैलेंस्ड फोर्स. अब बैलेंस फोर्स के वजह से क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स के वजह से बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा, राइट? क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो 0 है. अगर कोई बॉडी पे फोर्स 0 है यानी उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम द पोजीशन ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज. करेक्ट? एंड द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, अनबैलेंस्ड फोर्स. अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब अगर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 नहीं है, इफ द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, then that force is called as unbalanced force. For example, if I want to move this object, then I must apply some force, correct? Now this body is moving. In earlier case what we have seen that now also on this body 2 forces are acting. One is in the downward direction, another force is applied by my hand, okay, that is called as normal force. Therefore the body is in rest right now. And if I want to move this body, then I must apply some force so that the body will move. Okay, so that force is called as unbalanced force. In unbalanced force, when the force acting on the object is unbalanced, at that time the net force acting on an object is not equal to 0. Always remember this thing. Okay, unbalanced force में क्या होता है? उस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला जो नेट फोर्स होता है या फिर रिजल्टेंट फोर्स होता है वो 0 नहीं होता. But here the net force acting on an object is 0. So these two concepts are very important to understand the first law of motion. Let us see what is the first law of motion. For the better understanding of first law of motion, let us consider some example. Okay, you might have traveled with car or bus. At that time what happened? When driver applied the brake, at that time you will push in the forward direction. जब हम कार या फिर बस से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो क्या हो जाएगा? हम आगे की ओर झुक जाते हैं. करेक्ट? तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कोई भी बॉडी हो, एक तो वो रेस्ट में हो सकती है या फिर मोशन में हो सकती है. अब बॉडी जब हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं एट दैट टाइम हम कैसे हैं? मोशन में हैं, राइट? जब ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाया तो क्या हो रहा है? वो कार जो है वो रेस्ट में आ रही है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी और इस वजह से हम जो है आगे की तरफ झुकते हैं या फिर नीचे गिरते हैं. करेक्ट? दिस मीन्स दैट द फर्स्ट लॉ सेज दैट इफ द बॉडी whether it is in rest or in motion, that will be remain in that position only, right? Until and unless no external unbalanced forces act on that object. जब तक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक बॉडी जो इसका एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगी. अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा. करेक्ट? कब तक? जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल डे टू डे लाइफ में देखते हैं, राइट? उसमें क्या होता है, जैसे कि जब हम फैन स्टार्ट करते हैं उसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के बाद, आफ्टर स्विच ऑफ द फैन विल कंटिन्यू टू रोटेट फॉर सम टाइम. फैन जो है वो कुछ समय के लिए रोटेट करता रहेगा. ऐसे क्यों होगा? क्योंकि वो बॉडी जो है उसके एग्जिस्टिंग पोजीशन में रहने की कोशिश करती है. करेक्ट? बॉडी पहले मोशन में थी इसलिए वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी. कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता, राइट? लेकिन बॉडी कंटिन्यूस मोशन में नहीं रहेगी, कुछ देर के बाद वो बॉडी रेस्ट में हो जाएगी. इसका मतलब क्या हो रहा है? उस बॉडी के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है जो बॉडी को रेस्ट में ला रहा है. बॉडी मोशन में थी, उसको रेस्ट में लाने के लिए उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट होना पड़ता है. तो उस बॉडी के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड दैट अनबैलेंस फोर्स इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, द फ्रिक्शनल फोर्स इन द बेरिंग में जो फ्रिक्शन होता है उसके वजह से बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है. अगर ऐसा कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है उस बॉडी के ऊपर
तो वो बॉडी हमेशा के लिए मोशन में रहेगी, राइट? दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज। और बॉडी जो है उसके एग्जिस्टिंग पोजीशन में रहने की जो कोशिश कर रही है, उस टर्म को बोलते हैं हम इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया। सो inertia means what? The property or the tendency of an object to remain in its existing position. बॉडी का उसके एग्जिस्टिंग पोजीशन में रहने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम इनर्शिया। अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, राइट? क्यों? क्योंकि उस बॉडी को क्या है? इनर्शिया है। उस बॉडी के इनर्शिया की वजह से वो बॉडी खुद होके अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ द बॉडी। और ये इनर्शिया जो बॉडी को मिलता है वो किसके वजह से मिलता है? उसके मास के वजह से। ओके, द इनर्शिया ऑफ बॉडी इज ड्यू टू इट्स मास। ग्रेटर द मास, ग्रेटर विल बी इनर्शिया, स्मॉलर द मास, स्मॉल विल बी द इनर्शिया। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शिया ही एक्सप्लेन करता है बॉडी का, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट इज द definition or statement of first law of motion? The first law of motion states that an object will try to remain in its existing position until no external unbalanced force act on that object. अगर बॉडी के ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक बॉडी जो है वो उसके एग्जिस्टिंग पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। अगर बॉडी मूव हो रही है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। अगर हमने बॉल को हिट किया बैट के मदद से, क्या वो बॉल हमेशा मोशन में रहेगा? नो, राइट? वो कुछ देर के बाद वो रेस्ट में आएगी, क्योंकि बॉडी जब मूव होती है उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स के अलावा बहुत सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं और वो फोर्स जो है उस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए मदद करते हैं। अब ये लॉ कब ओबे करेगा? जब बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तब जो है बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनर्शिया, एंड हेंस द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, ठीक है। फिजिक्स में तो ये एग्जांपल हमने देखा, इनर्शिया होता है, वो होता है, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में ये एग्जांपल कहां पे दिखते हैं हमको? राइट, सिंपल सा एग्जांपल है। लेट अस सी द लॉ ऑफ इनर्शिया इन आवर डे टू डे लाइफ, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमारे डे टू डे लाइफ में कहा होता है वो हम देखने वाले हैं। ये पहला एग्जांपल लेते हैं हमने। यहाँ पे एक पेड़ है, अगर मैं इस पेड़ को ऐसे पकड़ के हिलाता हूं तो क्या हो जाएगा? ये इसको जो फ्रूट्स लगे हैं वो नीचे गिरेंगे। ऐसे क्यों होंगे? When I applied some force, when I shake this tree, at that time what happened? I applied the force on this tree. मैं इस ट्री के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ये जो फ्रूट है वो रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेंगे। अब मैं जब फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स ये पोर्शन पे लग रहा है, ट्री पे लग रहा है, ये इस फ्रूट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। दैट फ्रूट विल ट्राई टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग पोजिशन, एज अ रिजल्ट द फ्रूट विल फॉल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस व्हेन आई शेक द ट्री। सिंपल सर। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि हम जैसे कपड़े सुखाते हैं, तो उसको ऐसे जर्क करते हैं, ऐसे झटका देते हैं, तो उसमें से वाटर ड्रॉपलेट के छोटे छोटे बूंद नीचे गिरते हैं। ऐसे क्यों होता है? When we applied some force, when we jerk that cloth, at that time what happened? The water droplet are try to remain in its existing position, and as a result, when I applied some force on that cloth, the droplet will remain in its existing position, and finally they will fall down on the earth surface. जब हम झटकते हैं तो उसमें के वाटर ड्रॉपलेट उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट सेपरेट हो जाते हैं और कपड़ा अलग हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वो किसके वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से होता है। जैसे कि मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया तो वो ऑब्जेक्ट कई सालों तक वहीं पे रहेगा। कब तक? जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया। और सिंपल सा आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो।
चलो, अब मेरे पास ये ग्लास है, ये पेपर है और ये 5 रुपए का कॉइन है। अब इनर्शिया क्या होता है वो हम समझते हैं सिंपल एग्जांपल से। ग्लास लेना है आपको, इसके ऊपर पेपर रख के उसके ऊपर कॉइन रखना है। अब क्या हो रहा है, ये कॉइन जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, पेपर भी रेस्ट पोजीशन में है, एंड ग्लास ऑल्सो इन रेस्ट पोजीशन। व्हेन आई अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस पेपर, राइट, देन व्हाट हैपन, करेक्ट, जब मैं इस पेपर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस पेपर के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद वो कॉइन जो है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। एज अ रिजल्ट द कॉइन विल फॉल इन ग्लास, करेक्ट, लाइक दिस। जैसे मैंने पेपर के ऊपर फोर्स लगाया तो कॉइन के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, द कॉइन विल ट्राई टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग पोजिशन। एज अ रिजल्ट द कॉइन विल फॉल इन ग्लास। सेम चीज यहां पे हो रहा है, ये एप्पल जो है या फिर यह फ्रूट जो है वो उसी पोजीशन पे रहने की कोशिश करता है और ये पेड़ मूव हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और बिकॉज ऑफ इनर्शिया द फ्रूट विल फॉल ऑन द ग्राउंड। नाउ वी विल सी द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी मस्ट अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट एंड दैट कंसेप्ट इज मोमेंटम। क्या होता है वो? मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमको समझना होगा मोमेंटम क्या होता है, राइट। मोमेंटम मैथमेटिकली अगर हम मोमेंटम को एक्सप्रेस करें, मैथमेटिकली द मोमेंटम इज डिफाइंड एज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर P and we know that mass is denoted by letter M and velocity is denoted by letter V. Therefore, momentum is equal to mass into velocity. Mass into velocity. ये तो होगा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर डेफिनेशन। एक्चुअली मोमेंटम होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? सो मोमेंटम इज नथिंग बट द एनर्जी पजेसेस बाय मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के साथ जो एनर्जी होती है उसको बोलेंगे हम मोमेंटम, करेक्ट। और इस इक्वेशन पे से क्या दिखता है हमको? द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम जो है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड होता है एज वेल एज इट इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमने मास को बढ़ाया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? उसका मोमेंटम बढ़ेगा। और मास को कांस्टेंट रख के उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की तो भी उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो मोमेंटम इज व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इन अदर वर्ड्स द मोमेंटम इज नथिंग बट द एनर्जी पजेसेस बाय द मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी का जो एनर्जी होता है उसको बोलेंगे हम मोमेंटम। फ्रॉम दिस इक्वेशन the SI unit of momentum क्या हो जाएगा? As you know that the SI unit for mass is kilogram and SI unit for velocity is meter per second. Therefore, SI unit for momentum is kilogram meter per second. Kilogram meter per second. And what is the CGS unit of momentum? The CGS unit of momentum is gram centimeter per second. Gram centimeter per second. Oh, so this is the momentum. Okay, momentum is what? Momentum is equal to mass into velocity, or mathematical expression for the momentum is P is equal to m times v, and SI unit of momentum is kilogram meter per second, and CGS unit of momentum is gram centimeter per second. ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये कभी कभी MCQ में पूछा जा सकता है। What is the SI unit of momentum? What is the CGS unit of momentum? So this is very important. No, very important. So अब momentum तो समझ में आया हमको. Let us see what is the second law of motion. Okay, second law of motion क्या है वो हम अभी समझते हैं. The statement of second law of motion is the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. What is the statement for second law of motion? The rate of change of momentum is directly proportional to applied force, and the change in momentum is in the direction of applied force. और उस बॉडी में जो मोमेंटम हो रहा है, द चेंज इन मोमेंटम हो रहा है,
वो मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे होगी, दैट चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. सो दिस इज द सिंपल second law of motion. Okay, what is the statement for that? The rate of change of momentum is directly proportional to applied force, and the change in momentum is in the direction of applied force. Right? Rate of change of momentum जो है वो कितना होगा, applied force के बराबर होगा, and the change in momentum is always in the direction of applied force. So this is simple second law of motion. Let us consider the body is in motion. Its initial velocity is u. After time t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा. ओके, इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u से बदलकर वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t. ओके, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अप्लाइड फोर्स. Therefore, rate of change of momentum निकालना है. So in this case, we will find the initial momentum of the body. इसका क्या निकालेंगे हम, initial momentum. Initial momentum is equal to क्या हो जाएगा, initial momentum of the body is equal to, हाँ, as we know that momentum is equal to what, momentum P is equal to m into v. But we have to calculate the initial momentum of the body. Therefore, let us consider the mass of the body is m. Now initial momentum is equal to mass into velocity. Therefore mass into initial velocity लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम initial momentum find out कर रहे हैं. Mass into initial velocity, that is m into u. This is what, initial momentum. ऐसे ही निकालेंगे हम final momentum of the body. अब बॉडी का फाइनल मोमेंटम निकालना है हमको. फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, बट यहाँ पे वेलोसिटी हम देंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज v. ओके, दिस इज फाइनल मोमेंटम. नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. Therefore, mv minus mu. This is the change in momentum. Okay, final momentum minus initial momentum divided by time. That is final momentum divided by final momentum minus initial momentum divided by time. That is nothing but the rate of change of momentum. Okay. Here the m is constant. m दोनों भी इसमें constant है, तो इसको बाहर निकालते हैं हम. m into v minus u divided by t. So here we can write m into a, because v minus u divided by t is equal to what, acceleration. The rate of change of velocity is called as acceleration. So here we get the rate of change of momentum is equal to what, m into a. क्या मिला हमको, m into a. Therefore, by the definition, this rate of change of momentum is directly proportional to what, rate of change of momentum is directly proportional to applied force. So by the definition, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. And what is the rate of change of momentum? Just we have calculated, that is m into a is directly proportional to f. Okay. Now if we want to remove this proportionality symbol, हमको एक constant लेना पड़ेगा. इसको अगर remove करना है तो हम ले सकते हैं, that is m into a is equal to, constant हम 1 ले लेते हैं, 1 into f. Therefore this equation will 1 into something, that quantity again. Therefore this equation will become, that is 1 into f is equal to f. Therefore we will get f is equal to m into a. This is the simple second law of motion. So what is the statement? The rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Consider a body in motion. Its initial velocity is u and final velocity is v, right? Therefore the initial momentum is m into u, final momentum will become mv, and therefore rate of change of momentum is equal to, that is final velocity minus initial velocity divided by time. We'll get
the rate of change of momentum is equal to ma. Therefore, by the statement, the rate of change of momentum is directly proportional to what? Applied force. Therefore, ma is proportional to F. In place of proportional symbol, we take equal to sign as well as constant. Therefore, we will get the final equation, that is F is equal to ma. Force, that applied force is equal to mass into acceleration, or mass times acceleration. This is nothing but the second law of motion. It's very simple. बहुत ही simple है second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force. तो ये तो हो गया उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, ये डेरिवेशन हो गया, हमने ये समझा. अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल लाइफ में. जैसे हमको पता है हमारे डे टू डे लाइफ में फिजिक्स इज एवरीवेयर. हर जगह पे फिजिक्स है. हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हर जगह पे फिजिक्स है. साउंड, बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, मोशन, राइट. सो एवरीवेयर फिजिक्स. तो हमारे डे टू डे लाइफ में कि मोमेंटम या फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे ओबे होता है, कहाँ पे हमको दिखता है. जैसे आपको पता होगा हम सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं. क्रिकेट खेलते तो हम बॉल को कैच करते हैं. बॉल को क्या करते हैं? कैच करते हैं. व्हेन वी कैच द बॉल, जैसे बॉल ऐसे आया तो हम ऐसे कैच नहीं करते. उसको कैसे कैच करते हैं? उसको ऐसे कैच करते हैं. हमारे हैंड्स जो है हम पीछे ले लेते हैं. इससे क्या होगा, वहां पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है. वो कैसे? जैसे अगर मान लो कि हमने बॉल को ऐसे ही कैच किया, हमारे हाथ को पीछे नहीं लिया, तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी के ऊपर. करेक्ट. उस बॉल के ऊपर हमको ज्यादा फोर्स लगाना, या फिर उस बॉल को रेस में लाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको कैच करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. जब हम हाथ को पीछे लेते हैं तब हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है. सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि लॉ ऑफ मोमेंटम या फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे डे टू डे लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है. लेट्स कंसिडर द सिंपल एग्जांपल. जैसे बॉल यहां से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी मान लो कि पहले कुछ 5 मीटर पर सेकंड थी, राइट. अब बॉल ऐसे आएगा, यहां से हमने इसको पकड़ा और यहां तक लेके गया, ऐसे पीछे हाथ लेके गया और यहां पे बॉल स्टॉप हो गया है. ठीक है. इसकी यहां पे वेलोसिटी हो गई 0. और जब यहां से मैं हाथ को इधर ले जा रहा हूं तो कुछ समय तो लगेगा. वो समय लगेगा हमको मान लो कि 2 सेकेंड लगा, लाइक दिस. अभी सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं हम, बॉल उतने ही स्पीड से आ रहा है, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. अभी हम बॉल को कैच कर रहे हैं लेकिन हम हाथ पीछे नहीं ले जा रहे, राइट. हम ऐसे ही पकड़ लिया उसको, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. और उसके लिए समय कितना लगेगा? समय बहुत कम लगेगा, बहुत कम समय लगेगा. मान लो कि यहाँ पे 2 सेकेंड लगा और यहाँ पे उससे कम समय लग रहा है. मान लो कि कुछ 0.5 सेकेंड लग रहा है. कितना समय लग रहा है उसको? 0.5. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब हम बॉल को ऐसे पीछे लेते हैं हमको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. जब हम बॉल को हाथ पीछे नहीं लेते हैं, ऐसे कैच करते हैं, तो तब हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है बॉल को रेस में लाने के लिए या फिर बॉल को रोकने के लिए. हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज सिंपल इक्वेशन. लेट अस कंसीडर दैट इज F इज इक्वल टू व्हाट? F इज इक्वल टू m इंटू a. करेक्ट. लेकिन a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. देयरफॉर इसका मास कंसिडर करते हैं कुछ m इज इक्वल टू 200 ग्राम. कितना है? 200 ग्राम. चलो अभी क्या हो गया? मास इज इक्वल टू 200 ग्राम इंटू एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड. फिर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना लग रहा है उसको? 2. ओके. सो दिस विल बिकम कितना हो जाएगा ये? 200 इंटू 5. 5 2 जा 10. 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? ये आएगा 500 न्यूटन. मान लो कि ये सिंपल सा एग्जांपल है, एक्चुअल वैल्यू कुछ कम ज्यादा हो सकती है. यहां पे बॉल को रोकने के लिए हमें कितना समय लगा है, कितना फोर्स लगा है? 500 न्यूटन. कब? फर्स्ट केस में, जब हम बॉल को ऐसे कैच कर रहे हैं. सेकेंड केस में अब हम बॉल को कैसे कैच करेंगे? बॉल ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ही कैच कर रहे हैं, हाथ पीछे नहीं ले जा रहे हैं. उस केस में क्या हो जाएगा? द सेकेंड केस, सेम इक्वेशन, F इज इक्वल टू m इंटू a. फिर से मास कितना है उसका? 200 ग्राम इंटू एक्सलरेशन पहले 0, therefore change in velocity that is
5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड। अब इस केस में क्या हो जाएगा, therefore अगेन ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 0.5। अब ये 0.5 को हमको 50 करना है, कितना करना है 50। तो क्या हो जाएगा, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 दैट इज 5। तो इसको इधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, इसको 50 कर दिया तो 2 डिजिट राइट हैंड साइड में जा रहा है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर 50 इंटू 10 टू द पावर -2, करेक्ट। अब इस केस में फोर्स इज इक्वल टू ये 1000 इंटू 10 टू दी पावर 2, मतलब क्या हो जाएगा 100, तो इधर 2 0 बढ़ा दिया हमने, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 50। दिस विल बिकम 0 0 कैंसल, 5 2s are 10, 0 0 0, 2000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे। कितना फोर्स लग रहा है 2000 न्यूटन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द वेरी सिंपल लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट for every action force there is equal and opposite reaction force। इसका मतलब है हर एक्शन फोर्स को इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन वाला रिएक्शन फोर्स होता है। एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। लेट अस कंसीडर द सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ मोशन। अगर मान लो कि हमको जंप करना है, एट दैट टाइम क्या होता है, हमको जंप करना है तो हमको पहले एक फोर्स लगाना होगा हमारे पैर से नीचे। जितना ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतना ज्यादा हम जंप ले सकते हैं, ओके। अगर हमने कम फोर्स लगाया तो हम कम दूरी तक जाएंगे, अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा दूर तक जा रहा है। इसका मतलब ऐसा है जितना हमने एक्शन फोर्स लगाया है उतना ही हमको क्या मिलेगा, रिएक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड, करेक्ट। ग्राउंड की तरफ से उतना ही हमको रिएक्शन फोर्स लगेगा। जैसे और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि सिंपल जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं with the help of satellite launch vehicle। at that time also जो इंजन होता है, जो रॉकेट होता है, उसमें से बहुत सारे ऐसे फॉग या फिर गैसेस निकलते हैं। जब हम उसको इग्नाइट करते हैं at that time the forcefully the gases are released through the small nozzle and these gases will apply some force on the ground so that the satellite launch vehicle will get some reaction force by the ground and with the help of that force the satellite fly off in the sky। और सैटेलाइट जो है वो टेक ऑफ करता है, वो ऊपर जाता है। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। वन मोर एग्जांपल, इफ यू थ्रो द बॉल ऑन द वॉल, द बॉल विल रिटर्न बैक टू अस। दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और लेट मी क्लियर वन थिंग, यहाँ पे एक चीज हमको क्लियर करना है। जैसे हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में देखा था, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, अगर एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन बट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, लेट अस कंसीडर द 5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड वन मोर 5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। In this case what happened, two forces having same magnitude acting on the same body, therefore the net force acting on this object is 0। इस पे एक्ट होने वाला जो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वो 0 होगा। बट हियर आल्सो द एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे एक चीज हमको समझनी है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं, राइट। तो उस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। अगर इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द बॉडी विल नॉट मूव। बट जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल देखे, जैसे जंप वाला एग्जाम्पल हो, रॉकेट लॉन्चिंग का एग्जाम्पल हो, या फिर जैसे हम बुलेट को फायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ गन, एट दैट टाइम ऑल्सो द गन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एट द सेम टाइम the bullet will move in the forward direction, at the same time the gun will move in the backward direction. This is called as recoil of the gun, okay. The gun will recoil, means it will move in the backward direction. So in these example the two forces are having same magnitude but opposite direction, but still the net resultant force acting on the body is not equal to 0।
मतलब दो फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड वाले होने के बावजूद भी उस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो जीरो नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे यहां पे हमने देखा टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, दोनों भी फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, बट इन अदर एग्जांपल्स द टू फोर्सेस, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। दोनों भी फोर्सेस जो है वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं हो रहे। जैसे बुलेट के एग्जांपल लिया, एक्शन फोर्स बुलेट पे एक्ट हो रहा है और रिएक्शन फोर्स गन पे। बॉल का एग्जांपल लिया, एक्शन फोर्स बॉल पे एक्ट हो रहा है, रिएक्शन फोर्स किसके तरफ से लग रहा है? एक्शन फोर्स हमने लगाया उसको, अप्लाइड फोर्स, और रिएक्शन फोर्स किससे लग रहा है? वॉल से। मतलब टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू कीपिंग इन माइंड व्हाइल स्टडीइंग द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? वरना यू विल गेट कंफ्यूज्ड, that is two forces are opposite in direction having same magnitude, therefore net resultant force is zero. लेकिन ऐसा नहीं होता है, because here the force is acting on the same object and in other example the force acting on two different objects. So this is the simple third law of motion. I hope you understood this video. If this video is helpful, then please hit a like and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So dear friends, this is enough for today. The remaining topic, that is the law of conservation of momentum, we will study in the next video. Till then, bye bye and take care.